Hi guys, welcome back to my channel. My name is Radhika, and for those who are new here, I am from KIIT Bhubaneswar and I am currently in my fourth year. Thank you so much for watching this video. I know I've not been uploading videos since 2 weeks now, but that is because I started my internship with Informatica and I am so excited. It's been just 1 week now, but it has been really great. So that's what I was busy with, and I couldn't shoot videos. But today is Saturday, and I thought, why not make a video today? So for today's video, we are going to be doing a creation of a linked list. I have already made videos on traversals of a binary tree. If you want to learn those as well, you can go check my video out. I'll link that in my description box below or somewhere here, so you can go and check those as well. So let's get started with today's video. So to insert in a linked list, there can be three ways: insert at the beginning, insert at the end, and insert at the specified position. Okay, so for this video we will be covering inserting at the end, and the other two we can do in some other videos. So इस video के लिए we will learn how we will insert an element at the end of a linked list. Okay, so to begin with, let us first write our like the structure of the नोड ऑफ द लिंक लिस्ट. ठीक है, सबसे पहले हमने एक क्लास बना लिया node, and we know that we want a data and we want a pointer of node type which we call next. Okay, and also we will be creating a constructor. Okay, so node, एंड ये पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर होगा. हम लोग इसको यूज़ करेंगे अपना डेटा वैल्यूज़ को इनिशलाइज करने के लिए. ठीक है, तो फिर हम लोग इसको भी डेटा ही बोलते हैं. एंड वी विल डू दिस डॉट डेटा is equal to data. Now this dot data is the data of my like object, and ये data मेरा ये data है जो हमारा पैरामीटर में आया है. ठीक है, और नेक्स्ट को हम लोग नल करा देंगे, क्योंकि जब हम नया नोड क्रिएट कर रहे हैं तब हमको नेक्स्ट को कहीं भी पॉइंट नहीं कराना होगा, तो हम लोग उसको नल करेंगे. ठीक है, ये मेरा बेसिक स्ट्रक्चर है data ka. Fine. So first I will write the insert function, and then we will see the main function, because that's not the difficult part. The difficult part is understanding the insert function. Okay, so we will not need to return anything from this function, so we're taking it void. और इसमें arguments क्या क्या आएंगे? So we have to think हमें किस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी. हमें linked list traverse करना है, तो हमें एक head तो चाहिए ही होगा. तो फिर हम एक head लेंगे, and हम क्या कर रहे हैं, वी आर इंसर्टिंग अ वैल्यू, राइट? सो वी नीड दैट वैल्यू विच वी वांट टू इंसर्ट. सो हम वो वैल्यू ले रहे हैं, उसको हम लोग की बुला रहे हैं. ठीक है, सो अब यहाँ पे हमारे पास हेड है लिंक लिस्ट का, जो हम जिसमें हमको इंसर्ट करना है, एंड वो वैल्यू है जो हमको इंसर्ट करनी है. तो सबसे पहले हमको क्या करना है, एक नया नोड बनाना है. मतलब लाइक अगर हमें कुछ नया कुछ इंसर्ट करना है तो वो पहले होना तो चाहिए इंसर्ट करने के लिए. तो हम एक नया नोड बनाएंगे, उसको न्यू नोड कहते हैं, और लाइक ये पॉइंटर होगा, और न्यू नोड. सो दिस इज व्हाट आई वाज टॉकिंग अबाउट. सिंपली हमने इस छोटे से एक लाइन से एक नया नोड क्रिएट कर लिया है, एंड आई एम नॉट गोइंग इनटू डिटेल्स कि ये सिंटैक्स कैसे काम कर रहा है, लाइक न्यू नोड वाला कैसे काम कर रहा है. मैं इसकी डिटेल्स में नहीं जा रही अभी. तो दिस विल सिंपली क्रिएट अ स्पेस इन माई मेमोरी विथ node of value key and the next of it pointing to null. ठीक है, और फिर अब हमको क्या करना है, वी वॉन्ट टू इंसर्ट एट द एंड, राइट? सो मुझको पहले एंड तक पहुंचना पड़ेगा, क्योंकि ये जो हेड पॉइंटर है हमारे पास, ये हमारे नोड के लाइक लिंक लिस्ट के पहले नोड को पॉइंट कर रहा है. सो क्या करेंगे, हम लास्ट पॉइंटर तक पहुंच जाएंगे. वाइल हेड नेक्स्ट इज नॉट इक्वल टू नल, हमको आगे बढ़ते रहना है. सो हेड इज इक्वल टू हेड नेक्स्ट. ओके, so this loop will take us to the last node in our linked list, and इसके बाद हमको खाली insert कर देना है, right? so हम लोग क्या करेंगे, head का next को हम लोग new node पे पॉइंट करा देंगे, राइट? एंड दिस इज डन. दिस इज वेरी सिंपल. खाली हमें इतना ही लाइन
लिखना था कोड का टू इंसर्ट अ न्यू नोड एट द एंड ऑफ अ लिंक लिस्ट। ठीक है, इसका मेन फंक्शन फटाफट लिख लेते हैं, हालांकि वो डिफिकल्ट नहीं है, बहुत इजीली समझ में आ जाएगा। वॉइड मेन, हमें एक हेड चाहिए, तो वो हेड हम अपने मेन फंक्शन में ही क्रिएट कर लेंगे। अगर हम ऐसा नहीं करते हैं तो फिर हमें बहुत कुछ एक्स्ट्रा करना पड़ेगा, हमें पॉइंटर टू हेड लाइक एक दूसरा एड्रेस बना के जो हमारा हेड का पॉइंटर स्टोर करेगा वो पास करना पड़ेगा। एंड देन बहुत बहुत कुछ करना पड़ेगा, दैट आई विल एक्सप्लेन इन अनदर वीडियो वेयर आई विल टेल यू अबाउट हाउ वी विल बी इंसर्टिंग एट द बिगिनिंग ऑफ अ लिंक लिस्ट, क्योंकि उसके लिए कुछ एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट्स चाहिए। सो अभी सिंप्लिसिटी के लिए हम लोग यहाँ मेन में ही हमेशा एक हेड पॉइंटर क्रिएट कर लेंगे। एंड पॉइंटर क्रिएट करना वेरी सिंपल, हमको खाली न्यू नोड 10 ऐसे लिखना है एंड इट विल क्रिएट अ स्पेस इन माय मेमोरी, एंड देन वी जस्ट नीड टू कॉल दिस फंक्शन विद एंड पास दिस हेड एंड व्हाटएवर वैल्यू वी वांट टू इंसर्ट, and this will be creating a linked list for us. Now let's just dry run this code and understand कि ये exactly कैसे हो रहा है। ठीक है, so let me just erase this part. ओके, सो हम अभी वॉइड, हमारा फंक्शन वॉइड मेन से स्टार्ट होगा, तो ये वाला लाइन सबसे पहले रन होगा एंड हम एक हेड पॉइंटर क्रिएट कर रहे हैं। इससे न्यू नोड, पहले न्यू नोड बन रहा है, तो यानी कि यहाँ मेमोरी में एक नोड बन रहा है जिसका वैल्यू 10 है एंड दिस इज पॉइंटिंग टू नल। ठीक है, और हेड है एक वेरिएबल जो इसको पॉइंट कर रहा है। फाइन, इतना इतना अभी हमको समझ में आया। अभी हम ये वाला फंक्शन कॉल कर रहे हैं इंसर्ट, और हेड भेज रहे हैं और 20 भेज रहे हैं, तो मतलब ये अब इस फंक्शन में आ रहा है और ये वाला लाइन एग्जीक्यूट हो रहा है, मतलब एक नया कॉल हो रहा है, नया नोड बन रहा है विथ वैल्यू 20 एंड दिस पॉइंटिंग टू नल। अभी इसका इस लिंक लिस्ट से कोई कनेक्शन नहीं है, अभी खाली एक नोड बन रहा है। ठीक है, मेमोरी में एक नया नोड बना है विद 20 वैल्यू एंड नेक्स्ट पॉइंटिंग टू नल। अब हम क्या कर रहे हैं, अब हम इस लिंक लिस्ट के, इस वाले लिंक लिस्ट के एंड तक पहुंच रहे हैं इस लाइन से, राइट। सो फिलहाल हम पहले ही लाइन पे हैं, मतलब लाइक फिलहाल हम हमारे लिंक लिस्ट में एक ही नोड है, तो हम ऑलरेडी लास्ट नोड पे हैं ही, तो फिर हमारा जब ये होगा तब हम यहीं पे होंगे एंड इस लाइन के मदद से हेड नेक्स्ट इज इक्वल टू न्यू नोड, हम लोग इस नल को यहाँ से हटा के लाइक इस नेक्स्ट को हम इस पे पॉइंट करा देंगे। ठीक है, तो अब हमारा लिंक लिस्ट में एक और नोड ऐड हो गया है एंड में 20। ठीक है, अब जब हम दोबारा लाइक अगर यहाँ पे हमने एक और इंसर्ट लिखा हुआ हो हेड 30, तो क्या होगा, वापस ये हेड तो अभी इस फंक्शन कॉल होगा, हेड तो अभी यही है, एक नया नोड फिर से क्रिएट हो रहा है with value 30 and next pointing to null again। अभी इस लिंक लिस्ट से इस नोड का कोई लाइक रिश्ता नहीं है अभी कुछ भी, अभी ये अपना अलग ऑन इट्स ओन है, अपना ये लिंक लिस्ट अलग है। नाउ हम अब क्या कर रहे हैं, हम इस लिंक लिस्ट के एंड तक पहुंच रहे हैं, तो हेड इज इक्वल टू हेड नेक्स्ट। सो मतलब यहाँ पे हेड अभी इसको हटके इसको पॉइंट कर रहा है। ठीक है, और ये तब तक होगा जब तक ये लास्ट तक नहीं पहुंच जाए, सिंस अभी इसमें दो ही नोड है तो ये ऑलरेडी लास्ट में पहुंच चुका है एंड हेड नेक्स्ट इज इक्वल टू नल। सो मतलब अब ये लिंक कट के ये इसको पॉइंट करेगा एंड हमारा लिंक लिस्ट अब और बड़ा हो गया है, इफ यू कैन सी अब इसमें 3 नोड्स आ गए हैं। तो ऐसे ही कर करके वी कैन इंसर्ट as many insert lines here we want and we can get my nodes added to my linked list at the end। नाउ अगर आपको ऐसा लग रहा है कि ये हेड लाइक एंड में भी यहीं कैसे पॉइंट कर रहा है क्योंकि हमने तो हेड को चेंज कर दिया था, सो नो ऐसा नहीं है, हम सिर्फ लाइक इस फंक्शन में हेड को चेंज कर रहे हैं। ठीक है, ये इस मेन फंक्शन में रिफ्लेक्ट नहीं करेगा। दिस इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ पॉइंटर्स। अगर आप पॉइंटर्स अच्छे से समझते हो, अगर आप पॉइंटर्स का पूरा आइडिया है आपको, तो यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड कि ऐसा नहीं होगा, हेड का वैल्यू चेंज नहीं होगा, दैट विल be pointing to the first node only unless and until we change the value of head। like अगर हम head का वेरिएबल में जाके वेरिएबल को ही चेंज कर दें, like अभी आपको समझ में आ रहा है कि head एक मेरा वेरिएबल है जो पहला नोड का एड्रेस स्टोर कर रहा है। मान लीजिए मेरा पहला नोड का एड्रेस 3000 है, तो इट्स स्टोरिंग दैट एड्रेस इन इट्स
लाइक इन इट्स स्पेस, ओके, जहाँ पे भी हेड है वो अपने स्पेस में 3000 को स्टोर करके बैठा है, तो उसको पता है कि मेरे को यही नोड है मेरा पहला नोड। तो जब मैं अगर हम यहाँ पे चेंज कर भी रहे हैं तो वो मेन फंक्शन में चेंज नहीं हो रहा है, वो जस्ट एक लोकल वेरिएबल जो इंसर्ट फंक्शन वो पता है उसमें चेंज हो रहा है, ठीक है। सो डू नॉट गेट कंफ्यूज देयर। व्हेन आई विल एक्सप्लेन to you how we insert in the beginning, there I will explain to you this concept and you will understand this better. I hope you enjoyed this video, and let me know in the comment section below how did you like it. If you think it was helpful, then share it with your friends as well. I will be back with another video very soon. Till then, bye bye, happy coding.